টিভি9 বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মঞ্জিরা, রয়েছে আমি শুভজিৎ। মঞ্জিরা এবং শুভজিতের সঙ্গে রয়েছে আমি রুমেলা। আর অবশ্যই স্টুডিওয়ে আমরা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেই মাস্ক খুলছি, কিন্তু আপনারা এই সময় উত্তরোত্তর সংক্রমণ বৃদ্ধির সময় আপনারা মাস্ক পরুন, সচেতন থাকুন। আমরা অবশ্যই নজর রাখবো বিশেষ কিছু খবরের দিকে। বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন একদিকে, অন্যদিকে হেমতাবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। Found his ship was sinking, isn't it? To found an alibi. देखिए, कोरोना के बारे में हमारी सोच बहुत साफ है। कोरोना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सरकार राज्यों की मदद से इसको रोकने में पूरी कार्रवाई कर रही है और बिना किसी भेदभाव के कर रही है और करेंगे। अब टीएमसी के लोग जो सवाल करते हैं कोरोना को लेकर, तो मेरे उनके सवाल के जवाब में काउंटर क्वेश्चन है। ममता जी ने प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों की इतनी बैठक हुई, वो किसी में शामिल हुई क्या? आई एम वेरी सीरियसली आस्किंग दिस क्वेश्चन। डिड ममता जी अटेंड द मीटिंग्स विद द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड विद ऑल द चीफ मिनिस्टर्स? और वो दर्जनों मीटिंग हो चुके, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें भी कहा गया कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं। So that is enough for me to indicate that. বিজেপি এর থেকে বড় শত্রু আর কেউ নেই। রাজবংশী ভাই বোনেরা, আপনারাও জানবেন সবচেয়ে বড় শত্রু বিজেপি, এর থেকে বড় শত্রু আর কেউ নেই। উদ্বাস্তু মানুষেরা সব নিঃশর্ত জমির দলিল নিয়ে নেবো, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আমরা সব রেকগনাইজ করে দিয়েছি। যত উদ্বাস্তু আছেন নিশ্চিন্তে থাকুন, সবাই জমির দলিল পাবেন, সবাই জমির দলিল পাবেন, সবাই জমির দলিল পাবেন। চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। ভালো থাকুন, বেঁচে থাকুন, শান্তিতে থাকুন, সুস্থ থাকুন। মাস্ক ইউজ করুন, নিজের ওড়নাটাও দরকার হলে মাস্কের মতো করে পরে নেবেন, কাপড়ের আঁচলটাও দরকার হলে ওড়নার মতো করে একটু বেঁধে নেবেন। সুতরাং মাস্ক পরুন এবং নিজেকে ভালো রাখুন। The issue during the process of election is the election commission alone, and whatever the election commission says will abide. When we look at Delhi and the lockdown, there is a situation where there is a shortage of remdesivir as well as oxygen supply. How is the government dealing with it? I think it is very elaborately, all the government has taken the firm position. You may have heard about yesterday's decision that all the oxygen for industrial use has been banned, except few, and all the oxygen production has been diverted towards oxygen for the patient. The same is the case of also that particular medicine. Yes, any question? ऐसा है, फास्ट ट्रैक कोड 123 फॉर बंगाल, मोर देन 1000 फॉर द इंटायर कंट्री, अबाउट 1100। फास्ट ट्रैक कोड स्टैब्लिश करने के लिए स्टेट का कंसेंट जरूरी है, एंड आई वुड लाइक टू पर्टिकुलरली रीड दैट, उसलिए यू हैव टू गिव कंसेंट फॉर दैट। दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग एंड सपोर्ट फॉर दैट। তাদের জন্য বলবো গড ইজ গুড অ্যান্ড গড ইজ গ্রেট। আমার আদিবাসী ভাই বোনেরা আছে, তাদের জন্য বলবো জয় জহর। আমার তপশিলি বন্ধুরা আছে, সবাইকে বলবো রাজবংশীদের পঞ্চানন ঠাকুর জিন্দাবাদ। ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, সবাই ভালো থাকুন। আবার দেখা হবে। ऐसा है कि अब इस पर मैं क्या बोलूं? मैं तो यही कही थी कि इस चुनाव में खाली बाहर के लोग आते हैं, तो मैं तो और कुछ नहीं बोलूंगा। जो अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उसी को दोहराऊंगा। क्या सुभाष चंद्र बोस सिर्फ बंगाल के थे क्या? मैं बचपन से, जब से मैं संघ का स्वयंसेवक बना, विद्यार्थी पर कार्यकर्ता बना, विवेकानंद मेरे लिए ईश्वर है, तो क्या वो सिर्फ बंगाल के थे क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ बंगाल के हैं क्या? अरविंदो घोष बंगाल के हैं क्या? तो पूरी जो भारत की कल्पना है, ये दो गीत है ना, वंदे मातरम और जनगण मन, ये दोनों कहां से आया? यहीं से ना आया? तो ममता जी क्या बोल रही है मुझे समझ में नहीं आता। अगेन दिस शो द डेस्परेशन। दैट्स ऑल।
ऐसा है, आप बातचीत करके रास्ता निकालेंगे ना। यहाँ उन्होंने जमीन फाइनली अलॉट नहीं किया है, जमीन रखा हुआ है, उस पर काम नहीं किया है। देखिए, दो चीज़ें जान लीजिए। अब तो हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन में बहुत बड़ा लिबरल कॉम्पोजिशन का पैकेज रखा हुआ है, बट दिस कैन बी वर्कड आउट, व्हाई नॉट। बंगाल नीड्स इंडस्ट्री। हम चाहते हैं कि बंगाल का जो पूरा ट्रेडिशन रहा है वही आए। हम किसी पर फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई इंडस्ट्री आ ही नहीं रही है, चाहे वो लेफ्ट का राज हो या टीएमसी का राज हो। और बंगाल को अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ नौकरी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो यहाँ फैक्ट्री, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट आना पड़ेगा। अब आपको मैं एक ही चीज़ बताऊं, मुझे एक बहुत रोचक कहानी बताई गई कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बंगाल कहाँ है। देखिए आप, बंगाल का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज रैंक 10 इन 2017. It rose to rank 9 in 2019. उत्तर प्रदेश की तो बहुत आलोचना करती हैं ममता जी। यूपी was ranked 12 in 2017. Now it has become rank 2 in 2019. तो आपको जब यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ट्रेड चाहिए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, गुड लॉ एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल आई सपोज। थैंक यू। Thank you.